an exemplary leadership and business coach, helping business owners, CEOs, corporates in boosting revenues and growing profits. Recipient of Philip Kotler Excellence Award, serving corporates globally in restructuring business processes, systems, and right strategies for last 2 decades. Introducing a persuasive negotiator and a critical thinker, ICF certified coach and trainer, transforming business into success, contributing immensely to nation's growth. Founder and CEO at PNP Consultants, Dr. Praveen C. Srivastav. Okay, very good morning once again to all of you, and today I'm going to talk about in next 30 minutes how to increase your profitability in the business. And this is meant for those who have services business as well as the manufacturing, because fundamentals of business remain unchanged whether you are offering your services or even the business. So as I've been introduced as a profit coach, so I worked in corporate for more than 20 years and then moved to my own consultancy. I'm a international certified master trainer, coach, and last several years I'm working with business owners and help them to grow their business. These are few of my trainings which I did it earlier. Now let's understand, why do business fail? What is the reason? 5% people believe that they know everything and they can do everything, especially business owners. 7% wrong price positioning. 8% due to lack of planning. We don't plan it, we don't make the strategy, and then we start the business. 15% we are not able to understand clearly the market, the customer whom we are going to sell it. But the most important aspect is that more than 65% businesses fail because we are not able to understand finances, profit, and we are unable to handle overall capital. So this is something what we need to really focus on that. Now, what are the major challenges faced by the especially the entrepreneur or a business owner? Number one is obviously competition. Today we are operating in a very dynamic competitive environment, and without understanding the competition, if you will come out from the market, then it will be very difficult, because 20-30 years back, even the doctors, they had very few doctors, but today you will find it that everywhere you will find gym, you will find in absolutely in all the lanes, advocates, the manufacturers of any product. You will see the population has grown up, the businesses has grown up, so there is a huge competition, and we need to understand the competition, and within the competition we need to understand, we need to compare ourselves with the best one and try to find out why they are able to sell their product. If you know the answer, it will be easy for you to replicate in your business. The next one is level of demand. We don't understand the demand and we started selling our product or services. Let us understand the demand, and within the demand also we need to understand. Say suppose for example we are running a business of trousers or pant or shirt. You will have to understand the demand within that, कि cotton की ज़्यादा है या terracotta की है या casuals की है, कौन से color and all that. So I am talking about in that context. Funding, again funding is a major issue, and obviously cost, because what is the basic principle of profit? Revenue minus cost. Now either you can increase your profit by increasing the revenue, because we have, or you can reduce the cost. Now in order to increase the revenue you have to sell more, but there is a point you cannot sell more than that, because if you start selling the other one, your computer will getting a heat, and then what will happen? There will be a price war. वो price गिराएगा, फिर आपको भी गिराने पड़ेंगे. So you should continue to increase your sales so that you can get the revenue, but we have seen in the last 10 years, 15 years that you need to control your supply chain. बिकॉज सप्लाई चेन में आप क्या देखेंगे, अगर वहाँ अगर आपने कॉस्ट कम कर ली, जो कि
10 to 15 to 20% इनएफिशिएंसीज हैं, चाहे वो आपके वेस्टेजेस हो रहे हैं या जैसा आपने बोला कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, करेक्ट, या परचेज़ आपकी इनएफिशिएंट परचेजिंग है, प्रोडक्टिविटी आपकी कम है, राइट। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कंसीडर करेंगे तो वहाँ से भी आप कॉस्ट को बचा सकते हैं। सप्लायर्स आपके कैसे हैं, एंड ऑब्वियसली इकोनॉमीज ऑफ स्केल अगर जिनका मैन्युफैक्चरिंग है, और स्टाफ, बिकॉज स्टाफ प्ले a very very important role. There's a concept of branding, and when I talked about what is branding, people always think that branding is advertisement, right? It is just 10%. Branding is that when people are coming to your place, in your probably if you're an advocate, to your office, or you are running your services business, what kind of experience they get it, and the experience start from the receptionist, how they have been treated, correct. So customer experience is actually in turn into the branding. So in that way you will have to obviously train your employees and all those things, and obviously the profit. अब आता है एक मिथ, भ्रम। सबसे बड़ा भ्रम ये है कि अरे हम तो बहुत स्मॉल हैं, क्या हम कभी बड़े हो सकते हैं? तो मेरा केवल आंसर ये है कि अगर आप फर्स्ट जनरेशन टाटाज और अंबानीज और बिरला की देखिए, वो भी स्मॉल से ही स्टार्ट किया था। तो अगर वो इतने बड़े हो सकते हैं तो आप भी बड़े हो सकते हैं। बट द डिफरेंस इज दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे डिड इट, एंड इफ़ यू नो व्हाट ऑल दे डिड इट, एंड इफ़ यू रिप्लिकेट द सेम, नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम बिग। तो आज हम लोग उसी की बात करेंगे कि वो क्या क्या सीक्रेट्स हैं जो आपने अपने बिज़नेस में यूज़ करने हैं, जो इन लोगों ने किए थे। बिकॉज ये रिसर्च हुई है, करीब 2000 जो टॉप क्लास एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सक्सेस कैसे हुए, तो आज हम लोग उसकी बात करेंगे। सो नंबर 1 इज़ दैट ऑल कंपनीज स्टार्टेड विद स्मॉल ओनली, राइट। नंबर 2, बिज़नेस को बड़ा करने के लिए, जानने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा चीज़ें बिज़नेस के अंडरस्टैंड करें। इट्स ए एवोल्यूशन, इट्स ए साइकिल। वंस यू गेट इनटू दैट, आपको एक्सपीरियंसेस होंगे एंड यू विल लर्न फ्रॉम दैट। सो द डे यू थिंक दैट यू हैव टू डू द बिजनेस, जस्ट गेट लीन इनटू दैट, यू विल अंडरस्टैंड slowly the small and those aspect of the business, and then you will continue to do that. The other important aspect is that कि जब बिज़नेस में बात करो तो लोग कहते हैं बहुत कंपटीशन है और मार्केट ख़राब है। मैं हमेशा कहता हूँ ये मार्केट ख़राब है, मार्केट कंपटीशन है, ये तो हमेशा से ही था। कब मार्केट अच्छी थी? और अगर आप ये कह रहे हैं मार्केट बहुत ख़राब है और कंपटीशन है, तो क्या आपका मार्केट शेयर 50% है कंट्री में या 60% है? या आप ही एक शहर के सबसे बड़े एडवोकेट हैं, या आप ही एक शहर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं? अगर वो है तब तो इम्पैक्ट है, बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर इन चीज़ों में बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। मार्केट हमेशा से फेवरेबल थी या नहीं थी, आप अपना काम करते जाइए और राइट स्ट्रेटजी लीजिए। अगर वो लेंगे तो आपका सिस्टम और आपका जो बिज़नेस है वो चलता रहेगा। दूसरा, नॉर्मली बिज़नेस ओनर्स जो हैं वो इंडिया में टर्नओवर पे बहुत जाते हैं कि जी मैंने 1 करोड़ कर लिया, मैंने 2 करोड़ कर लिया। मैं कहता हूँ ठीक है, टर्नओवर इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नेट प्रॉफिट कितना है आपका। सो प्रॉफिट पे कंट्रोल करिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर एक कोई कंपनी है जिसका से सपोज़ 2 करोड़ का टर्नओवर है, बट अगर उसका 40 लाख प्रॉफिट है, वो कहीं ज़्यादा बेटर है कि 50 करोड़ की कंपनी और केवल 1 करोड़ प्रॉफिट बना रही है। So your prime responsibility is definitely profit, not a revenue. The other thing is that कि जो हमारा बिज़नेस होता है, तो अगर आपका स्मॉल बिज़नेस है, स्टार्ट किया, then it's okay. बट जहाँ आपका बिज़नेस 1 या 2 करोड़ रुपए के ऊपर अगर गया, करेक्ट, वहाँ पे आपके अकेले के लिए बिज़नेस को हैंडल करना वो बहुत मुश्किल होता है। और वो आप बिज़नेस तभी कंट्रोल कर सकते हो जब आपके सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस हों। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सिस्टम एंड प्रोसेसेस को अपने यहाँ बनाना, सो दैट वेदर यू आर इन द ऑफिस और यू आर नॉट, और यू आर प्रेजेंट इन द ऑफिस और यू आर नॉट प्रेजेंट इन द ऑफिस, आपको बार बार फ़ोन देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम आपके बिना भी चलता रहेगा। सो दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू इन द मॉडर्न टाइम्स। और जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं उन्होंने पर्सन स्पेसिफिक की जगह सिस्टम स्पेसिफिक बनाया है। एम्प्लॉई आएंगे, काम करेंगे, रिज़ाइन देके चले जाएंगे, उनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका सिस्टम चलना चाहिए। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, मैकडी का वर्ल्ड वाइड टर्नओवर है 1,75,000 करोड़। 99% एम्प्लॉइज़ पता है किस एज ग्रुप के हैं वहाँ? 18 साल से 21 साल। केवल 1% एम्प्लॉई है वो 40 और 45 के हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है। अब ये कंपनी कैसे चल रही है?
ये कंपनी केवल चल रही है सिस्टम एंड प्रोसेसेस की वजह से। आपके अपने घर में रोज़ वही दाल सब्जी का डिफरेंट टेस्ट आता है, बट इफ़ यू बाय आलू टिक्की बर्गर इन दिल्ली और इन मुंबई और इन चेन्नई, द टेस्ट वुड बी सेम, बिकॉज उन्होंने ये बनाया हुआ है कि 20 मिनट अगर ब्रेड बेक होनी है तो 20 मिनट ही होगी, ना 19 होगी ना 21 होगी। उसके बाद जो प्रोसेस है कि पहले टिक्की डालना है, फिर सॉस डालना है, फिर सलाद डालना है, फिर रैप करना, वही प्रोसेस है। तो आप अपनी कंपनी में सिस्टम को अगर स्टैंडर्डाइज कर देते हैं और उसके बाद क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बना दें लोगों की, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम से चलेगी कंपनी और आपको प्रेजेंट रहने की हर वक्त ज़रूरत नहीं है। और ये आप सर्विसेज बिजनेस में भी कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग में भी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप बिज़नेस ओनर हैं, आप कोई भी कंपनी है, कोई भी अपना ऑफिस रन कर रहे हैं, तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका और आपका सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। वो उसी तरह से जैसे कार का इंजन होता है, तो कार के इंजन में गियर होते हैं और गियर की जो अगर 4 गियर हैं उसमें, तो चारों की स्पीड सेम होनी चाहिए। 3 की 1 है और 1 की कम या ज़्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसी तरह आपका और आपके जितनी भी टीम है, आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, सबका माइंडसेट एक ही होना चाहिए। अगर उसमें मिसमैच होगा तो कहीं ना कहीं आपके बिज़नेस में उतार चढ़ाव आएगा। और यही सबसे बड़ा एस्पेक्ट है कि जब हम ग्रोथ में स्ट्रगल करते हैं और हम कहते हैं यार हमारे एम्प्लॉई हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं, या हमारे यहाँ परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। एंड देन इन आवर ट्रेनिंग, इन आवर कोचिंग, वी ट्राई टू रिजॉल्व दैट इशू, हाउ टू डू दैट, और वी टीच यू हाउ टू डू दैट। बाकी बहुत क्लियर रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगी, जनरल मैनेजर और प्रेसिडेंट हो। अगर 3 ही लोग हैं तो 3 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत क्लियर कट होनी चाहिए। अगर आप लोग वाइफ हस्बैंड बिजनेस रन कर रहे हैं तो वाइफ की भी, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बहुत क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा, सो दैट एवरीबडी इज़ वेरी क्लियर दैट व्हाट दे आर सपोज टू डू। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अकाउंटेबिलिटी वो बहुत है। HR देयर प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। करेक्ट। अब होता क्या है कि कभी अगर आपकी कंपनी में कोई नहीं आया तो आप क्या करते हो, किसी दिन कोई अगर एब्सेंट है तो आप क्या करते हो, उसका काम कौन करता है, फिर क्या होता है, हम खुद ही करने लगते हैं। दिस शुड नॉट बी देयर। डू यू हैव बैकअप्स कि अगर वो नहीं आएगा तो सिस्टम बना होना चाहिए कि अगर राम सिंह नहीं आए तो फिर श्याम सिंह करेंगे ऑटोमेटिकली, ये पहले से पता होना चाहिए। बट अगर क्या है कि राम सिंह नहीं आए तो आप उसी दिन परेशान रहते हो, 10-10 फ़ोन करते हो कि यार राम सिंह नहीं आए तो मुझे काम करना होगा। तो यही जो है ब्यूटी है सिस्टम एंड प्रोसेसेस की। अगर आपने उसमें कन्वर्ट कर दिया तो ऑब्वियसली योर कंपनी वुड रन। सो ये सारी चीज़ें इन सभी लोगों ने करी है और धीरे धीरे इसीलिए जितने भी बिजनेसमैन हैं ये सक्सेसफुल हुए। सो लेट्स मूव लिटिल बिट मोर। बाकी ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इफ़ यू आर रनिंग ए बिजनेस, डू नॉट रीच 11 o'clock. You want your people to come at 9 o'clock, you should be in your office at 8:45. We do a biggest mistake. We as a owner, we feel हम तो ओनर हैं, हम 11 बजे पहुँचेंगे और ऑफिस आपने 9 बजे का किया। मैं आपको बिल्कुल से कह रहा हूँ, एम्प्लॉय होता है, 2 घंटे वो पता नहीं काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको क्या पता। और कभी अगर आप 11 बजे पहुंचते हैं तो कभी बिना बताए आप 9 बजे ऑफिस पहुंच के देखिए, आपको सारा नज़ारा मिल जाएगा क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए बिजनेस में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो यू विल हैव टू बी डिसिप्लिन इफ़ यू वांट समथिंग you are expecting from your employee. You need to show the first, then only you can ask all those things from your employees. So what are the secret how to grow the business? I think number one secret is that you need to have a roadmap. Roadmap means where you are and where you want to go. And I'm not saying that you should create a roadmap for 10 years, but at least you need to have a roadmap for 1 to 3 years. This is what we call a business plan, a solid business plan. Now, how to create a business plan, obviously I can't explain right now, that would be in my training, but this is the number one you will have to. So you are very clear each and every step your company, your people will take in such a way that you should reach to that particular place where you would like to reach. So business plan बहुत ज़रूरी चाहिए. Second is that you need to have your scalable model. अगर आपका बिजनेस है और अगर आज आपका एक क्लिनिक है तो कल को आप वो फ्रेंचाइजी सेल कर सकते हो, तो देन यू कैन हैव अ सेकंड, यू कैन हैव अ थर्ड, यू कैन हैव अ फोर्थ। तो क्या आपका, बिकॉज नॉर्मली जो लोग मेडिकल या सेमी मेडिकल बिजनेस में हैं उनका ये मॉडल बहुत अच्छा है कि अगर उन्होंने अपना ब्रांड बना लिया तो देन दे कैन सेल देयर फ्रेंचाइजी, सो दे कैन स्टिल, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन द फ्रेंचाइजी, राइट। तो डू यू हैव दैट काइंड ऑफ स्केलेबल बिजनेस मॉडल और नॉट? ऑब्वियसली सिस्टम एंड प्रोसेस की मैंने बात करी, वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज innovation.
इनोवेशन आज की दिन में बहुत ज़रूरी है। एक रिसर्च हुई है, उसमें ये बोला है कि अगर आपने अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज में अगर आपने अगले 3 सालों में चेंज नहीं किए तो आप हिस्ट्री में चले जाएंगे। इस कंट्री ने 50 सालों में 2 कारें देखी थी, एम्बेसडर और फिएट, राइट, और इस साल 37 मॉडल्स आ रहे हैं। तो इंटायर पैराडाइम शिफ्ट ऑफ कस्टमर लाइकिंग डिसलाइकिंग हैज़ चेंज्ड। तो ऑब्वियसली आपकी बेसिक सर्विसेज चेंज नहीं होंगे, एक डॉक्टर की बेसिक सर्विसेज चेंज नहीं होती हैं, बट वो क्या नई नई चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस कर सकता है, जो कि करते हैं, जो कि हम लोगों ने देखा हुआ है। तो बहुत ज़रूरी है कि नया नया इनोवेशन करें, टेक्नोलॉजी को लेके आएँ। बेटर टाइम मैनेजमेंट, यू शुड बी एब्सोल्युटली गुड इन द टाइम मैनेजमेंट सो दैट यू कैन स्पेंड टाइम फॉर योर बिजनेस, फॉर योर पर्सनल फैमिली एंड ऑब्वियसली फॉर योर ऑल academics and everything. Managing your finance well. I am not saying that you should become chartered accountant, but at least you should understand the basics of finances. You should understand what are the financial ratios. जिस तरह हेल्थ के इंडिकेटर होते हैं कि बीपी होता है और शुगर लेवल होता है और भी बहुत से पैरामीटर्स हैं, तो उसी तरह बिजनेस के भी पैरामीटर्स होते हैं कि करंट रेशियो, आपका डेट टू इक्विटी रेशियो, ये 4-5 है जो करंट है, ये आपको कॉन्टीन्यूसली एवरी मंथ मेजर करने पड़ेंगे। अगर वो नहीं किया तो पता लगा कि सडनली 1 साल या 6 महीने के बाद क्या आपको पता लगा अरे आप तो डेट में चले गए। और मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि किस तरह कंपनीज डेट में चली जाती हैं। वो सोच रहे हैं वो प्रॉफिट है, बट उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, ओवरऑल बिजनेसेस में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कोविड के बाद क्या चेंज हुआ। बहुत से कंपनीज जिन सब ने ये काम किए वो कोविड में सर्वाइव कर गई। ऐसा नहीं है कि सारी कंपनी बंद हो गई। द लॉट ऑफ कंपनीज दे बेसिकली ग्रोन अप। जूम, कभी किसी ने सोचा था कि हम ऑनलाइन एंड दे क्विकली अडाप्ट। सो अडेप्टेबिलिटी जो है वो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या सोसाइटी चाहती है और क्या किस तरह से आपको करना है। एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। आप चश्मा बनवाने जाते हैं तो पहले क्या था, चश्मे का फ्रेम चेक करते थे। अभी आप जाने से पहले घर पे ही ऐप डाउनलोड करके अपनी फ़ोटो लीजिए और इसके बाद 100 तरह के फ्रेम हैं, आप वो सारे एक एक करके फ्रेम करके आप जो है अपने आप को देख सकते हैं। लेंस कार्ट, राइट। तो क्या ये चीज़ें आप ऑगमेंटेड, इसको टेक्नोलॉजी कहते हैं, क्या ये चीज़ आप अपने बिजनेस में उसको अपना सकते हैं? है, बहुत से लोग कर रहे हैं कि अगर आप आज 40 और 70 और जो भी आपका वेट है और अगर आप पतले हो गए तो आप कैसे लगेंगे देखने में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऐप्स आप अपने यहाँ उनको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी एक नई नई ऑफरिंग्स हैं जो आप कर सकते हैं। बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज़ हमेशा बड़ी होती हैं केवल बिज़नेस ओनर की वजह से नहीं। ये बहुत बड़ा मिथ है। बिज़नेस ओनर्स ये सोचते हैं कि यस आपने स्टार्ट किया, आप एक लेवल पे ग्रो करके लाए, बट उसके बाद अगर ग्रो करना है तो जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड नहीं करेंगे तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल हार्ड ट्रुथ है। और उसके लिए, क्योंकि मैं कई बार जब बिज़नेस ओनर से बात करता हूँ, कहते हैं यार मैं तो इतना पैसा देता हूँ, मेरे एम्प्लॉई काम नहीं करते हैं। तो फिर मैं उनसे उलट के पूछता हूँ क्या उनको पता है उनको क्या करना है? आपने उनके टारगेट्स बनाए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी पता है? तो ये पूरा बहुत, बिजनेस इज़ अ साइंस और आपको इसको साइंस की तरह से ही देखना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपने बिजनेस को साइंटिफिक वे से नहीं चलाया तो बिजनेस आपका नहीं रन कर पाएगा। यू विल हैव ऑलवेज प्रॉब्लम। देन हाउ टू हायर द बेस्ट पीपल। अब समटाइम्स मैंने देखा है कई बिजनेस में कहते हैं जी मैंने तो एम्प्लॉई रखा 6 महीने, वो रहा, उसने परफॉर्म नहीं किया और वो चला गया, एंड दे ट्राई टू ब्लेम दी पर्सन। आई वुड ब्लेम दी बिजनेस ओनर हु हैज़ इंटरव्यू। 2 थिंग्स, आपको किस तरह का आदमी लाना था, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा था, जेडी लिखा था, उसकी आपने बिहेवियल किस तरह का, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज़ फाइन, बट उस पर्टिकुलर पोजीशन में बिहेवियल उसके क्या ट्रेड्स होने चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद आपको, अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो यू शुड नो हाउ टू टेक द इंटरव्यू। इफ़ यू हैव टेकन अ रॉन्ग इंटरव्यू देन इट इज़ नॉट हिज फॉल्ट, दैट्स योर फॉल्ट। So how to hire the best people also is an art, and this also we try to teach. How to manage crisis आती रहती है, हमेशा आती है, कभी कुछ भी हो जाएगा, कभी सडनली। तो क्राइसिस में क्या आपका बैकअप प्लान है, कंटिजेंसी प्लान क्या है, दैट इज़ ऑल्सो यू विल हैव टू इनकॉर्पोरेट। मैन्युफैक्चरिंग के यहाँ शायद बहुत कम लोग हैं तो मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैन्युफैक्चरिंग की। आर्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, तो एग्जीक्यूट करना एक बहुत बड़ी, आप एक अच्छे एडवोकेट हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, बट केवल वो क्लिनिक आप पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आपके साथ और या 10, 12 या 50 लोग जो हैं वो किस तरह कर रहे हैं और उनसे काम निकालना, वो भी एक मैनेजरियल आर्ट होती है, दैट वन हैज़ टू लर्न बेसिकली।
देन ऑब्वियसली कि जब आपकी टीम है तो आप एक्टिविटी प्लानिंग रिव्यू बहुत क्लोज उनको मॉनिटर करें, और वो भी एक फॉर्मेट्स हैं हम लोग देते हैं, हाउ टू मॉनिटर योर एम्प्लॉयज़ एंड एवरीथिंग। बहुत रेडीमेड है, बहुत सिंपलेस्ट है, सो दैट वी कैन डू दैट, एंड ऑब्वियसली द सॉलिड प्लान। तो अब मैं बता रहा था कि नेट प्रॉफिट, एक कंसेप्ट होता है नेट प्रॉफिट का। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक कंपनी है, उसका टर्नओवर था पहले 5 लाख और अब हो गया 20 लाख, क्या ये कंपनी ग्रो करी? यस और नो? ग्रो, ओके 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 ओके। तो अभी मान के चलते ग्रो करी, बिकॉज 5 लाख से 10 साल 20 लाख हो गया, ग्रो करी। अब प्रॉफिट था पहले उसका, जब 5 लाख था प्रॉफिट तो 75,000 था, और जब 20 लाख हुआ तो 1.5 लाख हुआ। ग्रो करी कि नहीं करी? आप मैं समझ गया आप कहाँ से आ रहे हैं, बट और बाकी लोगों को एब्सोल्यूट में लग रहा है ग्रो कर रही होगी। एक्चुअली ये कंपनी ग्रो नहीं करी। अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन करेंगे तो पहले 15% था, अब 7.5% है। तो ये जो बिजनेस की निटी-ग्रिटी आपको बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि वो लेंस लगा करके मुनीम बन के देखना पड़ेगा, बिजनेस तभी चलता है। तो you will have to understand, and this is how we try to teach the science of business, that how you need to control this business। इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपने वो सारी आर्ट्स सीख ली तो आपको वीक में केवल 3 घंटे देने पड़ेंगे अपने बिजनेस में। रेस्ट यू शुड स्पेंड ओनली टाइम ऑन meeting your clients and try to increase the business, because as a business owner you should spend more time outside your office। but होता क्या उल्टा कि हम ऑफिस में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, और एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय होते हैं, दे विल कम विद ईच एंड एवरी प्रॉब्लम टू यू। सो यू बिकम, इंस्टेड ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यू बिकम द चीफ रिजॉल्विंग ऑफिसर। आप प्रॉब्लम ही सुबह से शाम तक सॉल्व करते रहते हो। तो उसका भी हमारे पास इलाज है कि अगर कोई एम्प्लॉय आता है तो सिंपल बोलिए कि यू विल कम टू मी, यू हैव टू टेल योर प्रॉब्लम, बट अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू गिव मी 2 solutions ऑल्सो। वेदर आई टेक दैट सोल्यूशन एंड ऑल दैट, दैट्स माई विल। आप देखेंगे कि 70% आपके पास आना बंद हो जाएगा। अरे सर तो सोल्यूशन ही मांग रहे हैं। दे विल ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन एंड दे विल डू इट ऑन देयर ओन। सो देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स आर देयर, बिकॉज दिस इज हाउ यू नीड टू मैनेज योर कंपनी। हाँ जी बताइए। श्योर। अभी जो स्टार्टअप का जो अभी चल रहा है, हाँ जी। तो अभी स्टार्टअप क्या करें, केवल कैश बर्न कर रही है, इवन कैश लॉस पे काम कर रही है। ओके। और जब मैं ऑडिट करने जाता हूँ उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कैश लॉस कर रहे हैं तो बिजनेस कंटिन्यू क्यों कर रहे हो, मैं क्वालिफिकेशन डाल दूंगा कि कंटिन्यू बिजनेस आपका है नहीं, ये कंटिन्यू कर नहीं पाएगा। तो उनका लॉजिक ये होता है कि सिर्फ स्टार्टअप है, हम जब तक बर्न नहीं करेंगे पैसा 2-4 साल, तब तक मेरा ग्रो नहीं करेगा बिजनेस, फंडिंग नहीं आएगी। और सिनारियो ये है कि एवरी ईयर 75% स्टार्टअप फेल हो रहे हैं। 78% नहीं, 97% है डाटा। लास्ट 10 years 97% startup has closed down, and because of 2 reasons only. Number 1, the business was not able to cash management, कैश को कैसे चलाना है, और नंबर 2 और मोर इम्पॉर्टेंट कि नॉवेलिटी थी। कोई स्टार्टअप का बेसिक रूल है कि यू हैव टू गिव सम नॉवेलिटी। लोगों ने क्या किया कि अजीत ने किया तो सुजीत ने भी वही कर दिया, गीता ने कहा तो सीता ने कहा चलो मैं भी वही बना देता हूँ। तो अब गीता ने जब अपना स्टार्टअप बनाया था तो उसके माइंड में कुछ और था, और सीता ने उसी को कॉपी कर लिया। तो देखिए स्टार्टअप का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग। और बिजनेस में आपको देखिए, हर एक बिजनेस में आपको ढूंढनी पड़ेगी। अगर देखिए आप एक तरह से अगर आप जाते हैं, जैसे हिमानी का बिजनेस है ये सोप्स एंड ऑल दैट, तो एक तो तरीका ये है कि आज ही हम ये सोप्स बनाते हैं जो क्लीन करेगा आपका बॉडी और दिस थिंग। और दूसरा क्या था, दूसरा क्या तरीका है उसी को सेल करने का? प्रेजेंटेशन। कि इफ़ यू वांट टू लुक गुड, यूज़ दिस। यू आर गोइंग आउटसाइड, there is a during the summer season ultraviolet rays होती हैं, तो you will use our moisturizer or our cream, it will kind of protect your skin, right? तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बताएं। समटाइम्स आपका स्टार्टअप बहुत अच्छा हो सकता है, समटाइम्स हमारा बिजनेस बहुत अच्छा होता है, बट वी डू नॉट नो द आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग आवर प्रोडक्ट और सर्विसेज। और अभी तो खैर सेल्स की में बहुत सी हम लोग कराते हैं कि यू हैव टू क्रिएट अ लिटिल बिट फियर इन दम। फियर ऐसा नहीं कि आप डराएं, फियर आप क्रिएट करें, फियर क्रिएट करा के उसको अवेयरनेस कराएं कि अगर ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। जैसे मैम की शुरू में प्रेजेंटेशन थी, और इंटेंशनली अनइंटेंशनली उन्होंने एक चीज़ बोली कि भाई कार्डियक अरेस्ट आएगा, पक्का आएगा, 1 नहीं आएगा 2 आएगा, तीसरा आएगा तो तीसरे के सर्वाइवल के तो 99% चांसेस ही नहीं होते हैं। तो वाई यू शुड डू दैट
और वाई यू शुड कम टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, आप प्रिवेंटिव से, देर आर 2 मेजर्स, प्रिवेंटिव और करेक्टिव। तो हेल्थ के लिए तो प्रिवेंटिव बहुत ज़रूरी। तो ये सारी चीज़ें सेल्स की भी सेलिंग है, और ये आपको अवेयर, आज की डेट में अगर हम कस्टमर को अवेयर नहीं कराएंगे अपने सर्विसेज के बारे में, उसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो यू विल नॉट बी एबल टू सेल इट। तो ये जो स्टार्टअप फेल हो रहे हैं, इसका बहुत से इफेक्ट हैं, 2 मैंने आपको बताया। और एग्जैक्टली ये इंडियन माइंडसेट है, इंडियन माइंडसेट है। तभी मैंने आपको बोला, मैंने एक वर्ड भी बोला था कि हम रेवेन्यू पे बहुत बिलीव करते हैं, जबकि यूरोपियन और यूएस जो उधर के लोग, उनका माइंडसेट बहुत क्लियर है। दे से कि भैया हम प्रॉफिट पे काम करेंगे। Exactly. I was a VP Asia Pacific for a US company. I stayed in US for 8 years and then I was in Bangalore. हमारा 68% हमारा मार्जिन था। हम उससे नीचे 60% के नीचे तो हमें वो दिया गया था इंस्ट्रक्शन, बेचना नहीं। हिंदुस्तान में क्या लोग 10% में बिजनेस करते हैं, 1%। और देर आप ये कहेंगे नहीं वो कंपटीशन, ऐसा नहीं है, कंपटीशन में भी आप कर सकते हैं। देर आर टेक्निक्स ऑल्सो, यू विल हैव टू डू दैट। मैं गारंटी करता हूँ कि मैं जब कभी क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ कितना तुम्हारा प्रॉफिट लेवल है, आई विल वर्क विद यू, आई विल गिव यू 20% नेट प्रॉफिट इंक्रीज ऑन दैट, बिकॉज आई नो कि इनएफिशिएंसीज कितनी बिजनेस में और कहाँ से निकालना है। मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत आसान हो जाता है ये। ऑलराइट, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। So solution to increase profit, I think number 1 you have to reduce your cost, चाहे वो आपकी एम्प्लॉई की सैलरी की कॉस्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट हो। अभी आज की डेट में तो कोविड के बाद सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, उनको तो टेस्ट लग गया कि यार वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। नाउ ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपनीज हैव टेकन अ डिसीजन दैट दे आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट मनी ऑन द लेविश ऑफिसेस। They'll ask their employee to come to the office once in a week, they'll hand over the job, because to do that software work, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हो सकता। मैन्युफैक्चरिंग में तो आपको फैक्ट्री आना पड़ेगा, ऑफिस होगा, कुछ सर्विसेज के बिजनेस में ऑफिस होगा ही होगा, बट उस ऑफिस को भी आप क्या लेन एंड थिन कर सकते हैं, राइट। तो उसमें भी लीन मैनेजमेंट एक होता है। लीन क्या होता है, जैसे लीन एंड थिन हम बोलते हैं ना, तो फैट को कट करते हैं। तो इस तरह बिजनेस में भी बहुत फैट होता है आपके। यू विल हैव टू चेक कि कहाँ अननेसेसरी एक्स्ट्रा मनी जा रही है, कहाँ हम कम कर सकते हैं, चाहे वो पावर एंड फ्यूल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो, राइट। एंड यू हैव टू यूज दैट थिंग, दैट फंड टूवर्ड्स द इनोवेशन और टेक्नोलॉजी। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इज इंक्रीज रेवेन्यू। ऑब्वियसली यू हैव टू, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके एक बार क्लाइंट बन गए, उनको आपको नहीं छोड़ना है। अगर आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट आपको छोड़ के चला गया तो इट्स ए क्राइम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार जो क्लाइंट आया वो कॉन्टिन्यूसली आपके साथ रहना चाहिए। वो नहीं आज उसकी फैमिली में कोई और मेंबर, बट क्लाइंट नहीं छूटना चाहिए। एंड प्लस यू हैव टू ऐड योर क्लाइंट्स इन द न्यू टेरिटरी। यू आर प्रेजेंट इन दिल्ली or you are present in East Delhi, why can't you have another office at North Delhi, or maybe you are present in Delhi, why can't you have office in Noida or in Ghaziabad or Meerut? So this is so organically भी आप इंक्रीज करें और इनऑर्गेनिकली भी अपने बिजनेस को इंक्रीज करें। तो ये भी रेवेन्यू इंक्रीज करने की टेक्निक हो सकती है। प्रोडक्टिविटी केवल प्रोडक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तो बहुत ही ज़रूरी है आपके एम्प्लॉइज़ की प्रोडक्टिविटी। इफ़ यू आर गिविंग देम ए सैलरी ऑफ 30,000, 50,000, 70,000, हाउ मच ही शुड give you the output? Have you decided? Have you converted everything into the numbers? It's very important that you need to convert numbers, target of your employees. Sales का तो बड़ा क्लियर होता है, वो तो शुरू से नंबर सही काम करते हैं, बट आपका जो ऑफिस में है वो क्या कर रहे हैं, आपके इवन HR मैनेजर, राइट, उनका भी टारगेट होता है कि एट्रिशन बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स एग्जैक्टली। तो देर इज़ अ वे दैट यू कैन कन्वर्ट द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ योर एम्प्लॉयज़ इनटू द क्वांटिटेटिव, और वो अगर आप करेंगे तो आप देखिए सडनली जो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो चेंज हो जाएगी। इंक्रीज एफिशिएंसी, योर ओन पर्सनल एफिशिएंसी एंड योर एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी, एंड देयर आर लॉट ऑफ वेज टू डू दैट। तो ये हम कर सकते हैं। सोल्यूशन बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफाइन योर कस्टमर। एवरीबडी, फॉर मी आई एम वेरी क्लियर दैट ईच एंड एवरी पर्सन मे नॉट बी माई कस्टमर, राइट। तो क्या आपने अपने आइडियल कस्टमर को डिफाइन किया है, क्योंकि वहीं पर फोकस लगाइए। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, यू विल वेस्ट योर एनर्जी। सो यू नीड टू डिफाइन योर आइडियल कस्टमर। देन ऑब्वियसली कंपटीशन एनालिसिस, और उसमें यही है कि जो आपका टॉप 3 जो आप इंस्पायर करते हो कि आप यू वांट टू बिकम दैट, तो आप वो जानने की कोशिश करो कि ये सेल कैसे कर रहा है।
ये क्यों इतना फेमस है, इसके पास लोग क्यों आते हैं, half of the thing you will come to know, and then try to, good things you try to replicate, there's nothing wrong in that, and obviously one or two things you try to introduce, उसको बोलते हैं competitive advantage और USP, कि मैं ये दे सकता हूँ और कोई नहीं दे सकता। मैं आपको, मेरे पास आप आइए, आपको मैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान दूंगा, या आप मेरे पास आएंगे, आई कैन गिव यू गारंटी कि आपका लॉस नहीं होगा। आप मेरे पास इंश्योरेंस कराएंगे कार का, मैं आपको मार्केट से और जो भी वो ऑनलाइन है, इन्फो ऑनलाइन व्हाटएवर, मैं उससे आपको 2% कम दूंगा। तो कुछ यूएसपी आपको डालनी पड़ेगी, और अगर ये दोनों चीज़ें हैं कि कॉम्पिटिटर को आपने ट्रैक कर लिया और इनएफिशिएंसी, आई एम टेलिंग यू, नोबडी कैन बीट यू इन योर बिजनेस, वेदर इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। यूज़ द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का तो आज की डेट में बहुत ज़बरदस्त, और इट्स नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। It is not at all expensive. Running your website, you can run your website, you can handle your LinkedIn, you can handle your Facebook page, you can handle your Insta, right? तो यहाँ से आप काफ़ी जितना भी मैक्सिमम है इसका यूज़ करिए। नेटवर्किंग ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आई रिमेंबर व्हेन आई बीन इन प्रगति क्लब 2017, और शायद मैंने उसी साल मोर देन 5 lakhs अर्न किया था। 5 lakhs इन कंसल्टिंग बिजनेस इज अ नेट प्रॉफिट, बिकॉज हमारा एक्सपेंस तो कुछ होता ही नहीं है, करेक्ट। तो ये था, हालांकि उसके बाद फिर कोविड हो गया एंड ऑल है, वो सब डिस्टर्ब हो गया, और फिर मैं थोड़ा दूसरे सिटीज़ में भी मेरा इंक्रीज़ हो गया, बट दिस इज़ हाउ। तो नेटवर्किंग ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। या कंटिन्यू टू ऐड मोर एंड मोर कस्टमर। कंटिन्यूसली आपको टारगेट बनाना है कि हमें 2 कस्टमर 10 कस्टमर जो भी आपका बिजनेस का लेवल है आपको ऐड करना है। उसके लिए हम स्ट्रेटजीज़ बताते हैं कैसे ऐड करना है। कंटिन्यू टू ऐड द न्यू सर्विसेज और पोर्टफोलियोज, एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट। या उसी ऑफरिंग को आप थोड़ा सा एक पॉलिश करके और रिप्रेजेंट करके करिए, बट यू विल हैव टू चेंज इट एवरी 2 to 3 years, अदरवाइज यू विल कंटिन्यू, वही है फिएट और एम्बेसडर हो जाएंगे, करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। रिलेशनशिप, क्लाइंट, देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो रिपीट परचेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिपीट परचेज रिलेशनशिप से आता है, ठीक है। आप हमेशा अपने क्लाइंट को फ़ोन करते हैं कि आप आए नहीं, आपको मैंने, कभी आपने फ़ोन किया उनको कि अब आप कैसे हैं, हाउ यू आर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उनसे पूछना है। ये दैट इज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ पहले मुझे याद है, अब इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट जब व्हेन वी वर किड हमारे यहाँ फैमिली डॉक्टर होते थे, एंड द फैमिली डॉक्टर यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड आई रिमेंबर व्हेन यूज्ड टू कम, यूज्ड टू टेल सो मेनी थिंग्स टू माई फादर, यार तुम ये नहीं करते हो, ये नहीं करते हो बच्चों का, तो एंड यूज्ड टू लिसन, ओके ओके ओके। तो ये रिलेशनशिप थी। तो क्या आपने उस लेवल की रिलेशनशिप अगर आपकी मेंटेन हो गई, आपको वो फैमिली, वो आपका क्लाइंट कभी छोड़ के नहीं जाएगा। एफिशिएंट डिलीवरी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कमिट किया कि परसों डिलीवर हो जाएगा, तो परसों फिर डिलीवर हो जाना चाहिए। और उसके लिए आपने क्या सिस्टम बनाए हुए हैं कि वो बिल्कुल विदाउट एनी फेल हो। वाई? बिकॉज कस्टमर एक्सपीरियंस इज योर ब्रांड। आज बहुत सी कंपनीज हम उनको क्यों याद करते हैं, वाई वी लाइक हिम, नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट, एवरीबडी इज हैविंग गुड प्रोडक्ट। अभी आज की डेट में ऑल मोबाइल्स आर गुड, राइट। कुछ ऐसा बड़ा डिफ़िकल्ट है एक्सेप्ट आईफोन कि 19-20 सारे ही हैं, राइट। बट एक पर्टिकुलर मॉडल बहुत सेल होता है, मे बी बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, मे बी बिकॉज ऑफ द सर्विस, मे बी बिकॉज ऑफ दिस थिंग। सो आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी बेटर सर्विस किसी दूसरे वाले से कर दी और उसको आपने एग्जिबिट करना शुरू कर दिया, तो पीपल विल रियलाइज, क्योंकि बिजनेस भी है, वर्ड ऑफ माउथ है। अगर मुझे फ़ायदा हुआ तो मैं इनको बोलूँगा, वो उनको बोलेंगे, उनके बोलेंगे। जो 5 लेवल्स हैं वो अपने आप कनेक्ट होने लगते हैं। रिटेन योर एग्जिस्टिंग कस्टमर, जैसे मैंने बोला था कि एग्जिस्टिंग कस्टमर अगर आपके पास जा रहा है तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन योर सर्विस और प्रोडक्ट व्हाटएवर। सो मेक श्योर दैट स्ट्रेंथन योर ब्रांड, पुट मोर फोकस ऑन योर ब्रांड, whether it was through social media, through networking groups, and through your service, through your brand. That is very important aspect. So I think this is what is how much time I have already taken. हो गया, ठीक, good. तो ये बहुत important है, इसको करिए।